Hello friends. So now we will discuss question number 20, that is the last question. And the question is, what is the significance of India US defense deals over India Russia defense deals? And we need to discuss it in with reference to the stability in the Indo-Pacific region. Okay. So uh, we need to discuss the importance of India-US defense deals with respect to the stability of India, well, keeping in mind the circumstances behind the stability of India Indo-Pacific region. So we need to estimate, or we need to analyze the importance of India-US defense deals over importance of India Russia defense deals. Now, before discussing the importance of US defense deals over Russian defense deals, we need to first understand the. We will first, in this lecture actually, we will first understand the importance of the Indo-Pacific region and what are India's stakes in Indo-Pacific region. So, two things we need to understand: the strategic importance of Indo-Pacific. Okay, first point. And second point, Indian stakes in Indo-Pacific. This is second. So once we understood the importance of Indo-Pacific as well as the importance of Indo-Pacific for India, then we will see what is the importance of India-US defense deals. ठीक है. So before doing much delay, we will directly analyze the first point, that is the importance of Indo-Pacific. So we will study the importance of Indo-Pacific point by point. So we'll write the heading Indo-Pacific. S importance due to SLOC. ठीक है. SLOC क्या है? Sea lines of communication. अब आप जानते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन, it consists of the continental mass as well as the ocean part. So both. So if this is Africa and this is Middle East, Africa, this is India, and these are different islands. This is East Asia and Australia and America. So this entire region is Indo-Pacific. So Indo-Pacific is actually a economic region, a strategic region. Okay, a concept behind having the presence of the continental masses as well as the ocean water. So, and this ocean water. So सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब ये जो सी लाइन्स है ना, ये जो लाइन्स हैं, ये सारा जो सी वाला पार्ट है. सो दिस एंटायर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. अभी क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक point of view because this region contains various
choke points. Because as you know, large amount of trade, that is the uh, merchandise trade passes through these sea lines of communication. ठीक है ना? So while passing through these sea lines of communication, the trade also passes through some choke points. choke point actually क्या होते हैं? choke point होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट है and this is also a continent. So if the trade is, if the ships, so if the trading ships, जिनको हम बोलते हैं वाइड शिपिंग, so if these trading ships passes through these points, so these countries, so this country or this country, can choke this part or can obstruct this part, can obstruct the free flow of trade via this part. ये रोक सकते हैं. अब अगर ये रोक देंगे तो क्या होगा? या तो बहुत लंबा घूम के जाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे आना है तो इतना लंबा घूम के जाना पड़ेगा. ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या होगी? जो ट्रेड 2 डेज में हो रहा था उसको 5 डेज लग जाएंगे, 3 दिन 4 दिन फालतू लग जाएंगे. या हो सकता है उधर से रास्ता ही ना हो ट्रेड, क्योंकि ट्रेड ऐसे नहीं, किसी भी रास्ते से आप नहीं जा सकते हो सकता है बहुत ही हाईली इनसिक्योर रीजन हो, तो इसी आप रीजन से यू कैन पास थ्रू. एंड इफ इट इज बीइंग चोक्ड बाय द नेशंस व्हिच आर इन विसिनिटी ऑफ दिस लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, तो free flow of trade cannot happen. So because of presence of various choke points. अब कौन कौन से choke points होते हैं मैं आपको बताता हूँ. इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं. Strait of Hormuz. So it is present in Africa and Middle East, on the border in between the Africa and Middle East. Second, Bab al-Mandeb. So it is Bab al-Mandeb. Bab al-Mandeb. It is also present somewhere in the Middle East. Third, अगर हम उधर जाएं, मलक्का, ये कहीं इंडोनेशिया के आसपास है. Then we have Sunda. Then we have Lombok. तो ये बहुत सारे वेरियस इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं विच आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो फॉर फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड. सो दैट इज वाई दिस इंडियन पैसिफिक रीजन is very important, because for free flow of trade, to ensure free lines of communication or uninterrupted or unobstructed lines of sea lines of communication, this Indo-Pacific region is very important. So because of the presence of key choke points from one more choke point, Mozambique Channel, Bab al-Mandeb, Lombok Strait in the east. This region actually, it plays a very important role in shaping the new power dynamics and ensuring smooth trade flows. So trade flow, ensure smooth trade flow, और उसके अलावा केवल ट्रेड ही नहीं पास होगा. ठीक है, नेवल फोर्सेस भी पास हो रहे हैं, नेवल शिप्स, कंट्रीज की शिप्स वहां से पास हो रही हैं. ठीक है ना, ट्रेडिंग यहाँ से हो रही है, शिप्स पास हो रही हैं जो कि पूरे रीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं. अलग अलग कंट्रीज की शिप्स प्रोवाइड जा रही हैं. उसके अलावा exploration of
ऑयल, गैस, रेयर मेटल्स, इनका भी एक्सप्लोरेशन होता है इस एरिया में. So that is why these sea lines of communication, which are the primary maritime routes, they are called the primary maritime routes between ports. जो ports के बीच में जो maritime route है, so they are used for trade, logistics, है ना. So they are the prime maritime routes between ports. So from one port, किसी कंट्री का यहाँ पे बंदरगाह है और यहाँ पे बंदरगाह है. So this is important sea line of communication. Sea line of communication मतलब इस लाइन इस पोर्ट के और इस पोर्ट के बीच में ये important sea line of communication है, जिसके थ्रू ships can pass on from one place to another point, and this line of communication is called SLOC. So this region actually provides that sea line of communication. बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे चौक पॉइंट्स हैं इस रीजन में. तो दैट इज वाई फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर पासिंग ऑफ नेवल शिप्स एंड फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल, गैस एंड रेयर मेटल्स, दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव टू इंश्योर. So it is required to be ensured free sea lines of communication or uninterrupted lines of communication. Next, second, एक तो यही पॉइंट हो गया due to sea lines of communication. Next, why it is important? This region is important. So this region is important for trading, है ना. ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अराउंड मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि 60% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी is being served. So 60% of GDP. So this region accounts for 60% of world GDP. यानी कि 60% वर्ल्ड जीडीपी इस रीजन में बनती है. जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो दिस रीजन अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी एंड मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. So this region is very important because around greater than 45% of world trade passes through this region. 45% of world trade, not passes, but actually this region accounts for 45% of world trade. Greater than 50, around 60% actually, greater than 60% of world population, and this region provides for 60% of world GDP. ठीक है. So that is why this Indo-Pacific region is very important. Plus, if we consider the sea part, then around 60, greater than 60% of trade passes through SLOC, है ना. And greater than 80% of oil trade happens through SLOC in Indo-Pacific. ठीक है ना. ये तो बेसिकली ये है कि कंट्रीज इतना 45% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड करती हैं, जो अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड. तो जो ट्रेड 45% ऑफ ट्रेड इस रीजन में होता है, बट पास कितना होता है यहाँ से 60% से ज़्यादा, और 80% ज़्यादा ऑयल ट्रेड पास होता है. तो सच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रीजन because majority of the world trade passes through this Indo-Pacific sea lines of communication, and 45% of world trade this region accounts for greater than 45, around it is 46 actually, 46% of world trade.
ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स आप एग्जाम में लिखना जरूरी है। दिस इज इम्पोर्टेंट टू राइट इन योर एग्जाम। एग्जैक्टली याद ना हो तो अप्रोक्सीमेट यू कैन राइट 60%, ग्रेटर देन 60%, लाइक दिस। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज दी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे। एक तो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो मैंने बताया अभी, चोक पॉइंट्स, और एक ट्रेडिंग। थर्ड, नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स। ये रीजन इज ससेप्टिबल टू वेरियस थ्रेट्स। बहुत थ्रेट्स इस रीजन में बहुत सारी एंटी यू कैन से एंटी इंटरनेशनल एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है ना, इस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं विच आर एंटी इंटरनेशनल, लाइक विच आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स। इलीगल फिशिंग, यहाँ पे बहुत इलीगल फिशिंग होती है इस रीजन में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, पायरेसी, ठीक है, एंड उसके अलावा बहुत सारे मेराइन पोल्यूशन। दिस इज नॉट एंटी इंटरनेशनल, बट बहुत ज़्यादा मराइन का पोल्यूशन इस एरिया की वजह से इस एरिया में हो रहा है, मेराइन पोल्यूशन। सो दीज थ्रेट्स are disturbing the ecosystem of this area, Indo-Pacific area, and it is required to address these threats on priority. So to address these threats, it requires convergence of interests of different countries. So it requires integrated and convergence of efforts. So it requires integrated and convergence of efforts of different countries. कि सभी countries and so these threats are they are disturbing this area, the peace and security of this area, and that is why it requires the collaboration of efforts of different countries to eliminate or to ensure the safe and secure Indo-Pacific region because of the presence of these non-conventional threats. Next, fourth, rich in natural resources. अच्छा, ये बहुत नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है ये, लाइक मीथेन हाइड्रेट्स, ऑफशोर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, सी बेड मेटल्स, ठीक है ना, या यू कैन से रेयर सी बेड मेटल्स या मिनरल्स, ठीक है, या यू कैन से मिनरल्स, रेयर अर्थ metals, fishes, ठीक है ना, सी फूड, और यू कैन से
So rich in natural resources. So there is actually competition among different countries for exploitation of these natural resources. So due to this competition, each and every country is trying to exercise its authority over this region to to become the owner of these resources. So that is why this region is very important strategically to ensure its ownership over these resources. ठीक है. Next is China aggression. ठीक है ना, चाइना एग्रेशन. अब आपको मालूम ही है कि चाइना इस रीजन में बहुत एग्रेसिवली डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है. उसकी कई मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजीज चाइना इज अडॉप्टिंग. ये एक तो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके उन रीजन्स को उन रीजन्स जहाँ पे भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है उन रीजन्स पे अपने ये मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर रहा है ताकि ये उस पर्टिकुलर रीजन पे अपनी मिलिट्री कहीं ना कहीं अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर सके और बाकी कंट्रीज को सबड्यू कर सके इन दी सी. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल ग्वादर पोर्ट इसने इस्टेब्लिश किया है पाकिस्तान में. पाकिस्तान. हम्बनतोता श्रीलंका. दजी बूटी ठीक है ना इन दिस अफ्रीकन कोस्ट. तो एक तरफ से तो ये सी के ऊपर बात, और उसके अलावा साउथ चाइना सी. चलो उसकी हम अलग से बात करते हैं. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है. तो ये क्या कर रहा है, इसलिए कर रहा है ताकि ये फिर जो कोस्ट लाइन है और जो बाकी बड़ा समुंदर है वहां पे ये रिकनेसेंस और सर्विलेंस उन जगहों से कर सके. रिकनेसेंस, मिलिट्री रिकनेसेंस, ठीक है ना, एंड सर्विलेंस. यानी सर्विलेंस कर सके और रिकनेसेंस कर सके. लगभग सेम ही है कि स्पाइंग कर सके उस रीजन पे कि बाकी कंट्रीज किस तरीके से अपनी अथॉरिटी वहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हैं और उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर स्पाई कर सके और अपनी अथॉरिटी जमा सके ताकि वो उसका कब्जा रहे अगर उस एरिया पे. तो अगर कोई भी इमरजेंसी आती है या कहीं भी कोई भी युद्ध छिड़ता है तो उसका कंट्रोल हो जाए, वो चोक कर दे, क्योंकि उसने इस तरीके से अपने पोर्ट्स और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है कि वो चोक पॉइंट्स के आसपास किया है ताकि वो चोक पॉइंट्स को चोक कर दे. चोक कर सकता है चाइना. तो ये स्ट्रेटेजी है टू सराउंड द इंडो पैसिफिक रीजन विद इट्स माइट. इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप कर रहा है. उसके अलावा जो इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दिस इज कॉल्ड BRI, विच इज अच्छा इसका पहले नाम कुछ और था, सम सिल्क एंड समथिंग इसका नाम था, सिल्क बेल्ट समथिंग लाइक दिस. अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया इसका नाम, विच इज रीनेम्ड एज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. इसके माध्यम से ये क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है इन दी अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज.
ठीक है, इसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है इस इनिशिएटिव के माध्यम से। एंड यूरोप, ठीक है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब बेसिकली क्या कर रहा है ये बहुत सारी इसकी जो कंडीशंस हैं, फाइनेंसिंग कंडीशंस ऐसी हैं, ये क्या करता है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है और वहां की कंट्रीज को डेप्ट में ले आता है किसी तरीके से। सो द कंडीशंस आर सच दैट its financing conditions are such that the countries come under debt of China, and जब कंट्रीज डेप्ट में आ जाती हैं चाइना के, तब ये अपना जो है आप कह सकते हैं कि अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है, मतलब डेप्ट बर्डन करता है, और उसके अलावा ये उन प्रोजेक्ट्स को यूज़ करता है फॉर मिलिट्री प्लेसमेंट, वहाँ पे अपनी मिलिट्री प्लेसमेंट कर देता है और किसी तरीके से उन कंट्रीज के माध्यम से उस रीजन पे अपना अथॉरिटी एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है। So it engages in irresponsible financing. So due to this irresponsible financing, the countries come under debt burden of China, and when they come under debt burden, so this opens up the possibility for China to use these projects which it has developed in these countries as military facility, जहाँ से वो military facility यूज़ कर सके, ताकि वो किसी भी परिस्थिति में अपनी वहाँ पे सेना डिप्लॉय कर सकता है या रिकनेसेंस या सर्विलेंस कर सकता है, ठीक है ना, बेसिकली उस रीजन पे अपना एकाधिकार जमाने के लिए, उस रीजन पे अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए। ठीक है, इसके माध्यम से कर रहा है। एक साउथ चाइना सी में इसका अग्रेशन जारी है, साउथ चाइना सी, इवन ये इंटरनेशनल लॉज को भी नहीं मानता चाइना। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑन कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है ना, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज ऑन लॉ ऑफ द सी। हाँ, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक रूलिंग दी थी कि जो 9 डैश लाइन है उस तक ही चाइना का सोवरन राइट है ओवर दी ईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है चाइना की, दैट कम्स अंडर दी डैश लाइन, 9 डैश लाइन तक ही है, उसके बियॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये पूरे साउथ चाइना सी पे अपना एक अधिकार समझता है। इट हैज सोवरन राइट ओवर all the resources of South China Sea, and any ship or any country which wants to pass through South China Sea, because South China Sea इस तरीके से strategically important है in Indo-Pacific कि more than 50%, मैंने कहा था 60% of world trade pass होता है, and more than 50% of world trade passes through, out of 60% passes through South China Sea. So even it doesn't accept the ruling of the Permanent Court of Arbitration, which rules under the UN Convention on Law of the Sea that China has exclusive economic zone under the 9 dash line of South China Sea. But it has rejected the court's ruling and expressed that it has full sovereign right over the entire South China Sea. तो ये क्या कर रहा है, वहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, वहाँ पे अपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स स्टैब्लिश कर रहा है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, ठीक है, आइलैंड्स को मिलिटराइज कर रहा है, जो भी वहाँ पे आइलैंड्स हैं उनको मिलिटराइजिंग दी आइलैंड्स देयर, ठीक है। रेगुलर वहाँ पे क्या करता है, वो रेगुलर वहाँ पे पेट्रोलिंग करता है ऑफ इसके जो चाइना के जो वारशिप्स हैं वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, एंड अदर नेवल शिप्स रेगुलर पेट्रोलिंग करते हैं, एंड और ये ऑब्स्ट्रक्ट भी करता है जो वहाँ पे बॉर्डर और भी कंट्रीज हैं उनके वहाँ से कम्युनिकेशन को इट रेगुलरली ऑब्स्ट्रक्ट्स। तो जिसकी वजह से बहुत सारा कंटेंशन है, दिस साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा बोन ऑफ कंटेंशन क्रिएट हो गया है। तो जो चाइना का अग्रेशन है ऑन डिफरेंट फ्रंट्स विच वी आर सीइंग, एंड उसके अलावा आप जानते ही हैं जो हाल फिलहाल में इंडिया के साथ हुआ है LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे,
प्लस डोकलाम में जो कि सिक्किम के आसपास, ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो JNK में है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो जो इसका एग्रेशन है चाइना का ऑन दी कॉन्टिनेंटल फ्रंट, या तो कॉन्टिनेंटल और ऑन दी ओशन फ्रंट, सी फ्रंट में, दोनों तरफ से जो उसका एग्रेशन है चाइना का, ये इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द कंट्रीज शुड कम टुगेदर, different countries who are present in Indo-Pacific should come together to contain the aggression of the China, or to you know to converge their interest with each other against the interest of the China. जो चाइना का जो चाइना का जो वो है इंटरेस्ट है, उसके अगेंस्ट ये अपने इंटरेस्ट कन्वर्ज करें एंड कम अगेंस्ट द माइट ऑफ द चाइना, बिकॉज चाइना जो है इलीगली इट्स एक्सरसाइजिंग इट्स सोवरेन अथॉरिटी ओवर साउथ चाइना सी एंड एक्सप्रेसिंग इट्स एग्रेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो पेट्रोलिंग करता, मैंने जैसे बताया, मिलिटराइजिंग द आइलैंड्स कर रहा है, ये सब ये चीज़ें कर रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इसने पोर्ट स्टैब्लिश किए हैं, ग्वाडर पोर्ट, हम्बनतोता पोर्ट एंड दजीबूटी में इसने नेवल बेस लगाया है। तो ये की चेक पॉइंट्स के पास ये पोर्ट्स हैं और वहाँ पे ये अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करता है, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में ये चोक कर देगा उन पॉइंट्स को, जिसकी वजह से ट्रेड पूरी तरह तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वजह से दिस इंडो पैसिफिक रीजन इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स गिनाए, तो वी विल रिकलेक्ट दोज 5 पॉइंट्स। ठीक है, वी विल रिकलेक्ट, विल रीराइट इन पॉइंट्स। पहला, इंपॉर्टेंट SLOC, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन फॉर ट्रेडिंग पर्पस, देन rich in natural resources, rise of non-traditional threats या non-conventional threats, इनका threats है, and aggression of China. This is why this region is strategically very important to be part of foreign strategy of the countries, to focus their foreign strategy or foreign policy on the welfare, free, open and inclusive Indo-Pacific। ये बेसिकली टारगेट है जो क्वाड का है, और यही कंट्रीज का फॉरेन ऑब्जेक्टिव है, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है बहुत कंट्रीज का रिलेटेड टू द इंडो पैसिफिक रीजन, टू हैव फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, नाउ आफ्टर वी हैव स्टडीड the strategic importance of Indo-Pacific region, which was erstwhile called as Asia-Pacific region, now called as Indo-Pacific region. So now we will study what are India's stake in Indo-Pacific region. India का क्या stake है इस region में, why it is important for India, और India का क्या stake है and India क्या कर रहा है, दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो डिफेंस डील्स वाला है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, बट पहले हम इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में एक डिटेल लेक्चर ले लेते हैं आज। ठीक है, सो व्हाट आर इंडिया स्टेक्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्वियसली ट्रेड, है ना।
Just a minute.